questions are based on the 5 3-digit numbers given below. तो हमारे पास 3-digit नंबर है 219, 742, 936, 587 and 853. Question number 1. 1 is subtracted from the first digit and 2 is subtracted from third digit of each of the number. What will be the difference between the highest digit of the highest number and the third digit of the lowest number? जल्दी से 30 सेकेंड्स दूंगा पर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बोला नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. What will be the resultant of third digit of the highest number is divided by the first digit of the lowest number? Next question. Question number 3. If the position of the first and the third digit of each of the number are interchanged, what will be the sum of all the digits of the second highest number thus formed? Next question. Question number 4. If all the digits in each of the number are arranged in descending order within the number, which of the following will be the lowest numbers? Next question. Question number 5 to 9. These questions are based on the following set of numbers: 937, 483, 765, 572 and 684. If in each number the first two digits are replaced by their sum, which number will be the largest? Next question. Question number 6. If in each number the position of first and the second digit are interchanged, which number will be the smallest? A, B, C, D. बोला नहीं आंसर, अपने कॉपी पे लिखते जाओ. Next question. Question number 7. If in each number the order of the digit is reversed and then the number are arranged in descending order, which number will be second? बोलना नहीं है, अपना करो बच्चे. Question number 8. If in each number one added to the last digit and then the position of the second and the third digit are interchanged, which number will be the largest? Next question. Question number 9. If 1 is added to the second digit and then the first digit and the second digit are interchanged, which number will be third? Question number 10. Direction for question 10 to 14 following question are based on the 5 3-digit numbers given below. If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, then what will be the difference between the number which are second from the left and the second from right? Next question. Question number 11. If 1 is added to each even digit in all the numbers, then in how many numbers thus form will a digit appear twice within the number? Question number 12. If all the digits in each of the number are arranged in descending order within the number, which of the following will form the highest number in the new arrangement of the number? Question number 13. What will be the resultant if first digit of the highest number is divided by the second digit of the lowest number? 14. If the position of the first and the third digit of each of the numbers are interchanged, what will be the sum of all the digits of the second lowest number them form? Question number 15. Question number 16. Question number 17. Question number 1. What is the answer? C. कोई डाउट किसी को? 1. कोई डाउट नहीं है किसी को? 1 is subtracted from the first digit and the 2 is subtracted from the third digit. सबसे पहले नंबर में से जो सबसे पहला डिजिट है हर एक नंबर में, उसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 करना है, और 2 मुझे कहां से सब्ट्रैक्ट करना है? थर्ड डिजिट में से. Then what will be the difference between the first digit of the highest number? चलो इन सब में से ऑलरेडी पहले हाईएस्ट कौन सा है? 9. इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 8 रह जाएगा.
हर एक में से 1 1 माइनस करूंगा, हर एक 1 1 स्मॉलर हो जाएगा, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा, 8 रह गया। एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, इन सब में से सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है मेरे पास? यही है ना। चलो ये इसका सबसे थर्ड डिजिट कौन सा मेरे पास? 9 है। 9 में से क्या माइनस करना है? 2 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना रह जाएगा? 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हर एक में से माइनस करने नहीं लगना मुझको, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी 3 इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज A 20। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 B 742। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 684। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 इज A 937। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 C 765। कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, यही वाला क्वेश्चन। If in each number the order of the digit is reversed, order यानी कि 937 का 739 बन जाएगा, हो जाएगा, and then the number are arranged in descending order, which number will be the second? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बी बॉम्बे 937। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is D Delhi 572। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is C 294। कोई डाउट है तो पूछते जाना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10। If all the number are arranged in ascending order from right to left, then what will be the difference between the number which are second from the left and the second from the right? टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर मैं सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट की बात कर दूं या सेकंड फ्रॉम द राइट की बात करूं, यानी कि चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का क्या निकालना है मुझको? डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालना है। तो अरेंज करते हैं इनको। अरेंज में सबसे पहला नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, यानी कि एक तो 789 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे मेरे पास ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा, फिफ्थ पे आएगा, यानी कि 495 आ गया। 495 इनका डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। 4 से एंड होगा, 4 से एंड एक ही ऑप्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डी दिल्ली 4। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 is D 789। कोई डाउट? 13th का C 3। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is A 14 का A। क्वेश्चन नंबर 15 D 6। कोई डाउट इसमें? कौन सा था ये? बी है, सॉरी बी, ये नहीं है, बी 8 है। क्वेश्चन नंबर 15 बी 8। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बी 2। क्या क्वेश्चन था? हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द नंबर 8 2 5 6 4 7 each of which is as far away from the left and in the number as when they arranged in the ascending order?
मेरे पास नंबर क्या था 82567। मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले 2 आ गया, देन 4 आ गया, देन 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कितने नंबर्स थे जिनकी पोजीशन सेम थी? 2 नंबर्स की थी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए ऑप्शन 0, नन, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं डीआई, डाटा टेबल्स। ठीक है, कल हमने बार ग्राफ किए थे, आज डाटा टेबल्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? Direction for questions 1 to 5. These questions are based on the table given below. The table below reflect the preferences of children who watch different types of TV programs as found by the survey of a residential neighborhood in which all the children participated. अब हमें एक टेबल बना हुआ है जिसके कॉलम की हेडिंग पे चैनल्स के नेम लिखे हैं, कार्टून चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, मूवी चैनल, गेम्स, क्विज, हॉरर या म्यूजिक न्यूज। सेम चैनल हमें यहाँ पे दे रखे हैं रोज की हेडिंग पे, कार्टून, स्पोर्ट, मूवी, गेम, क्विज, हॉरर, म्यूजिक, न्यूज। नीचे क्या दे रखा है? द नंबर इन ईच सेल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्रेफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। द प्रोग्राम इन द row represent the first preference and the program in the column represent the second preference। वो उनकी second preference होगी। जो हमें रो में दे रखा है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी रो में। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि रो 1 कॉलम 1। हमारी रो 1 कौन सी है? ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है, दोनों में कार्टून लिखा हुआ है। यानी कि 760 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनकी फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस ओनली कार्टून चैनल है। बोलो ठीक है। देयर आर 760 चिल्ड्रन हुज फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस इज कार्टून। ठीक है, उसके बाद रो 1 कॉलम 2, दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम 2। रो में लिखा हुआ है कार्टून, कॉलम में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 525। यानी कि 525 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो कार्टून चैनल है एंड सेकंड प्रेफरेंस जो है वो कौन सा चैनल है? स्पोर्ट्स चैनल है। तो 525 मींस देयर आर 525 चिल्ड्रन हुज फर्स्ट प्रेफरेंस इज कार्टून चैनल एंड द सेकंड प्रेफरेंस इज स्पोर्ट्स चैनल। बोलो ठीक है। ये डाटा गिवन था, ये टेबल है। आई थिंक सबको टेबल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन शुरू करें। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अगेन हर एक उसमें टेबल बना हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज फर्स्ट प्रेफरेंस इज आइदर गेम और क्विज एंड द सेकंड प्रेफरेंस इज आइदर हॉरर और म्यूजिक। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन हुज फर्स्ट एंड द ओनली प्रेफरेंस इज कार्टून चैनल? बोलना नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करो। हाँ जी, तो सबसे पहले द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज फर्स्ट प्रेफरेंस इज आइदर गेम और क्विज। फर्स्ट प्रेफरेंस आइदर गेम और क्विज, ठीक है, ये दोनों है। और सेकंड प्रेफरेंस इज आइदर हॉरर और म्यूजिक। आइदर हॉरर और म्यूजिक, तो कौन से बच्चे हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस गेम एंड हॉरर 74, फर्स्ट प्रेफरेंस गेम एंड म्यूजिक 53, फर्स्ट प्रेफरेंस क्विज एंड हॉरर 43, फर्स्ट प्रेफरेंस क्विज एंड म्यूजिक 68। टोटल करना है, टोटल करें। 70 प्लस 50, जल्दी बोलते जाओ। 120 प्लस 40, 160 प्लस 70, कितना हो गया? 230। ठीक है, बाकी एडजस्ट कर ले। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 में से 2 माइनस किया 8 और ऐड कर लो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो अप्रोक्सीमेशन पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 21, 31, 41, 60%। ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, नजदीक नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कहा था?
approximately what percent of the children whose first and the only preference is cartoon, first and only preference is 760, number upon number, जल्दी से बताओ कितना हो गया? 10% कितना है हमारे पास? 76, अप्रोक्सीमेट 80, 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी? 7 238 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 into 3 240, ठीक है, इधर 30% आ गया, इधर कितना आ जाएगा? 80 into 3 कितना होता है? 240, ये 80 से कितना कम है? 4 into 3 12, 12 माइनस कर लो, ये 10 माइनस कर लो, 240 में से अगर हम 10 माइनस कर लेते हैं कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 228 नियर अबाउट ही है मेरे पास, ठीक है, 30 के नियरेस्ट है, 30 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और 30 से थोड़ा बड़ा जो है वो मेरे पास 31% है? और का मतलब है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पे लिखा है? गेम और क्विज, फर्स्ट प्रेफरेंस है तो गेम है या क्विज है? ठीक है बच्चे, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, एडिशन भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्रेफर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोग्राम? जस्ट रेज योर हैंड, कोई लिखना नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी, मैं देखना चाहता हूं कितनी जल्दी जो है मुझे आंसर आ रहा है। गुड, शाबाश, एक बच्चा आ गया, और 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 10। अब बस ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था? ओनली वन टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो वन टाइप ऑफ प्रोग्राम कौन से थे? डायगोनल, ओनली वन टाइप। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, मैंने कहा था कि ऑप्शन जरूर देखनी है। पहली ऑप्शन लेस देन 760, दूसरी 1528, 3 960, देन कांट बी डिटरमाइंड। देखो मेरे पास ओनली वन टाइप है, ओनली कार्टून, ओनली स्पोर्ट्स, ओनली मूवीज, ओनली गेम्स एंड सो ऑन। कॉलम वाले ऐड करने ऑप्शन से, क्या मैं इन कॉलम वालों को ऐड कर सकता हूं चाहे मुझे ज्यादा टाइम लगे? ऐड तो हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ सकती ना अभी, कांट बी डिटरमाइंड, एक ऑप्शन एलिमिनेट। अब इन्होंने कहा था इन सब का टोटल जो है, पहली वैल्यू 760 है, तो लेस देन 760 तो नहीं हो सकती थी, ये भी कट कर ली। अब इक्वल टू 970 कह रहा है, सी ऑप्शन दिखता है 970, अगर ये 7 है 2 इसमें ऐड करता हूं 900, तो यही हो गया, तो 970 से तो बहुत ऊपर चले जाएगा टोटल। बताओ मुझे क्या आंसर हुआ? 1528। तो हमेशा फिर वही कह रहा हूं कि एलिमिनेट ऑप्शंस, कोई जरूरत नहीं थी कैलकुलेशंस की। हाँ, जरूर कई आगे कई क्वेश्चनों में कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो बच्चे। तो बी ऑप्शन 1528 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसको ऐड करना है वो ऐड करके चेक कर सकता है वैसे तो, ठीक है, अगर उसके पास बहुत सारा टाइम हो तो, ठीक है, ये सभी ऐड करने हैं, टोटल 1528 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if a fees of ₹10 is collected from every child who prefer program of more than one type and has cartoon as the first preference, while a fees of ₹8 is collected from those whose second preference is cartoon and ₹5 is collected from those who prefer only cartoon, then what is the total fee amount collected? Option 42,000, 49,600, 55,700, approximate या data inadequate। जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। अब मैंने कहा था कि पहले डाटा समझ आना चाहिए, डाटा समझ आ गया, अब क्वेश्चन समझ आना चाहिए, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो शुरू हो जाओ, ठीक है। अब ऐसा भी कोई है कि जिसे क्वेश्चन ही समझ ना आया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सबको क्वेश्चन समझ आ गया है ना, कि है कोई? चलो फिर जल्दी कैलकुलेट करो अगर क्वेश्चन समझ आया। व्हाट इज द आंसर? एग्जैक्टली है, बाकी तो ऑप्शन नहीं मैच करती, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है,
सबसे पहले ओनली कार्टून वाले कौन से हैं? इनसे कितने पैसे लेने हैं हमने? इनसे 5 रुपए लेने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 7600 का हाफ कितना हो जाएगा? 3800। तो इनसे कलेक्ट कर लिए। अब जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कार्टून है उनसे कितने पैसे लेने हैं हमने? 10 रुपए। ऐड करते हैं, ऐड करना। 500 प्लस 300, 800 प्लस 400, 1200 प्लस 600, बोलो जल्दी बचे। 1800 प्लस 200, 2000, 2000 प्लस 400 से एडजस्ट कर लेते हैं, कितना हो गया? 2400 प्लस 6800 को इसको कर लेते हैं, कितना हो गया? 2500। अब कहोगे सर इसे 68 क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ 40 छोड़ दिया, 11 छोड़ दिया, 25 छोड़ दिया था, इसलिए 68 को मैंने नेक्स्ट मल्टीपल ले लिया। ठीक है, 70 को मैंने नेक्स्ट मल्टीपल ले लिया, मेरे पास 2500 आ गया, जिसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया मेरे पास? 25,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जिनकी सेकंड प्रेफरेंस कार्टून है उनसे हमने 8 रुपए लेने हैं। सेकंड प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस कार्टून है, तो 892 को 900 लेट कर लेते हैं। 900 प्लस 200, 1100 प्लस 100, 1200 प्लस 100, बोलो 1300 प्लस 100, 1400, 1400 प्लस 100, 1500, 1500 प्लस 50, 1550 हो गया। बाकी एडजस्ट करते हैं हम, कितना यहाँ पे मैंने ज्यादा लिया था, यहाँ पे मैंने कम लिया था, 20 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे मैंने 50, 70 हो गया, 70 प्लस 30 100 हो गया, यहाँ मैंने 100 लेट किया था तो 100। ठीक है, 50 यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, 50 करोड़ हो जाएगा मेरे पास। 1600 अप्रोक्सीमेट 1600 ले लेते हैं, इंटू 8 करो, कितना हो गया? ठीक है, 30-40 ऊपर हो सकता है, 30-40 नीचे हो सकता है, कितना हो गया? 16 इंटू 8 कितना होता है? कितना होता है? 12800। टोटल करते हैं, 00 आ गया, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी आ गया, 37, 37 और 4 कितना हो गया? 41,000 के नियरेस्ट आ रहा है। कौन सी ऑप्शन है? 42 है, कोई वैल्यू थोड़ी सी कम होगी 42 ये बहुत दूर है, 49 बहुत दूर है। ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। कोई एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं जाएगा, अदरवाइज टाइम ज्यादा लग जाएगा। बोलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। जैसे मैंने इसको 50 लिया था, अब इसको इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि अप्रोक्सीमेट 200 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो अप्रोक्सीमेट 200 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको 100 लेट कर लो, 200 लेट कर लो, फिर 50 और 20 70 कर और आ जाएगा, ऐसे कर ऐड कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the popularity of type of a program is measured by the number of children who have it as the first preference, and if the children watch only program that are either their first or second preference, ठीक है, ये पॉपुलैरिटी डिफाइन कर रखी है कि पॉपुलैरिटी कैसे डिफाइंड होगी यहां तक। ठीक है, आगे then approximately by what percent is the number of children who watch the most popular type of program more than the number of children who watch least popular type of program। तो चार्ट को देख के, टेबल को देख के बताओ कि मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोग्राम कौन सा है? कार्टून। और सबसे लीस्ट पॉपुलर कौन सा है? न्यूज चैनल। सबसे कम वैल्यूज दिख रही है मुझको कंपैरेटिवली, तो ये सबसे जो है लीस्ट पॉपुलर है। इनके टोटल करने हैं, इनके टोटल करने हैं। तो आई थिंक इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने कार्टून वालों के टोटल किए थे। कार्टून वालों के टोटल कितने थे? 760 प्लस 2500 आया था और एक 1600 आया था, बट वैल्यू हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई थी तो मैं इसको 1650 ले लूं। ठीक है, टोटल करो कितना हो गया? ये कार्टून के आगे मेरे पास। अब हम बात करते हैं लीस्ट पॉपुलर। लीस्ट पॉपुलर है न्यूज। न्यूज वालों के टोटल करो, न्यूज वालों का टोटल जल्दी से मुझे टोटल बताओगे। ये तो हो गए मेरे पास फर्स्ट प्रेफरेंस, ये ओनली प्रेफरेंस और ये सेकंड प्रेफरेंस के हो गए।
न्यूज चैनल। टोटल करके बताओ मुझे कितना आ गया, जल्दी से, फास्ट। कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 400 आ गया। चलो ठीक है, ये 400 आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। 200, 300, 400, 700, बहुत दूर दूर है ऑप्शंस, बहुत दूर दूर है। ठीक है, इनका टोटल कितना आ गया ऊपर वालों का? कितना आ गया? 10 आ गया, 4900 आ गया। ठीक है, 10 भी इग्नोर कर देते हैं। चलो अब मुझे इनका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? क्योंकि बात मोर की हो रही थी, मोर की हो रही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4500 डिवाइडेड बाय कंपैरिजन किससे करना है? डिनोमिनेटर में क्या होगा? कितना है मेरे पास? लीस्ट 400। दिस कितना परसेंट हो गया? ये गलती की है क्या कहीं पे कैलकुलेशन? if the program type of the if the popularity of the type of the program is measured by the number of children who have it as their first preference, and if the children watch only program that are either their first preference or second preference. यहां पे न्यूज में कॉलम नहीं ऐड किए। ये कौन था जिसने मुझे 400 बताया? करो टोटल करके बताओ मुझे कितना है, जल्दी से टोटल करो। मैं भी टोटल कर रहा हूं, आप भी टोटल करो। कितना आ गया? 1000 आ गया? 1000 आ रहा है सबका? नहीं आ रहा है जिसका मुझे बता दो। 60 प्लस 90, जल्दी करते जाना। 150 प्लस 50, 200 प्लस 50, कितना हो गया? 250 प्लस 100, 350 प्लस 50 और कर लो, कितना हो गया? ये 400 आ गया। ठीक है, इधर को टोटल कर लेते हैं। 70 प्लस 70, 140, 10 यहां से ले लेते हैं। 150 प्लस 100, 250, 250 प्लस 130, कितना हो गया? 380, 380 प्लस 120, 500, 500 प्लस 70, 570। या अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत वैल्यू छोड़ी थी, 580। तो 400 प्लस 580 कितना हो गया? 980, 980। अप्रोक्सीमेटली 1000 ले लेते हैं, 980 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 4900 था, माइनस 1000 कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेता हूं। मुझे बताओ कितना परसेंट आ गया? दोनों को माइनस किया, 3900 रह गया। 3900 डिवाइडेड बाय 1000 किया, 3.9 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 390% आ गया। 390% आ गया। एक्चुअल ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी थी तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। 390 से 380 से इंक्रीज हो जाएगी, 400 आ जाएगी। सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन बोला, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। What is the difference in the number of children whose first preference is either cartoon or news and those whose first preference is movies? तो कार्टून का तो हमने टोटल निकाला ही था, 760 प्लस 2500, ये कार्टून का फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई। और जो हमने न्यूज चैनल की फर्स्ट प्रेफरेंस निकाली थी वो कितनी आ गई थी? 400 आ गई थी। अब हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी निकालनी है? मूवीज की निकालनी है। मूवीज कहाँ पे है? ये है मूवीज। इसका टोटल करके बताओ मुझे कितना आया।
कितना हो गया? 1280, 13, 1290 ले लूं, दोनों की एवरेज ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इनका डिफरेंस निकालना था, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। किस किस का? फर्स्ट प्रेफरेंस इज कार्टून और न्यूज, ये एक साथ प्लस होंगे, एंड मूवीज का, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? 29, कितना हो गया? कितना हो गया? 2371, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये और ये तो वैसी थे, प्रॉब्लम यहां पे थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। Direction for question 6 to 10. These questions are based on the table given below. Following table gives the statistics of all the bowlers in a match between Pakistan and India. अच्छा, bowlers हैं ये। पाकिस्तान के अकरम रजाक, स्लेन, यूनिस, इमरान अफरीदी। ओ मीन ओवर, ओ का मतलब है ओवर बोल्ड, एम का मतलब है नंबर ऑफ ओवर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड, एम का मतलब क्या है? मेड इन ओवर, ठीक है, ये ओवर आ गया, मेड इन ओवर आ गया। नेक्स्ट, आर रन्स गिवन, आर का मतलब है जितने रन्स दिए थे, डब्ल्यू का मतलब हमारे पास आ गया विकेट्स टेकन और विकेट्स टेकन, ठीक है। एक्स्ट्रा इज इक्वल टू रन कंसीडर्ड इन एडिशन टू द टोटल रन्स conceded by the bowlers. India gave no extra runs to Pakistan. India gives no extra runs. ठीक है, चलो, तो आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ आ गया। मैच देखते होंगे फिर तो जल्दी समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which bowler had least number of balls bowled per wicket? अब एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे 10 ओवर्स हैं तो 10 into 6 यानी कि इसने टोटल 60 बॉल्स फेंकी होंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है विच बॉलर हैड लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड पर विकेट। तो मैं सिर्फ शास्त्री, अकरम, रजाक और बिन्नी की बात करूंगा। सबसे पहले शास्त्री की बात करते हैं। शास्त्री ने टोटल 7 into 6 42 बॉल्स के पीछे 3 विकेट्स ले ली, यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अगर मैं इसकी विकेट्स पर बॉल की बात करूंगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 बॉल्स के पीछे 1 विकेट ले लेता है वो। ओ सॉरी, 14 नॉट 7, 14, ठीक है। 14, 3 का 42, यानी कि एवरी 14 बॉल्स के पीछे 1 विकेट वो ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकरम की। अकरम 10 into 6 60 के पीछे 3 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा इसका? 20 बॉल्स पर विकेट। नेक्स्ट हमारे पास है रजाक 12 into 6 72, टोटल बॉल 72, विकेट 1 है तो ये 72 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिनी। बिनी है 9 into 6 54 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 27। मुझे क्या निकालना था? लीस्ट नंबर, तो आंसर इज ए, शास्त्री, रवि शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच बॉलर हैड कंसीडर्ड लीस्ट नंबर ऑफ रन्स पर विकेट। अब पहले बॉल्स की बात हो रही है, अब रन्स की बात हो रही है। लीस्ट नंबर ऑफ रन्स पर विकेट, अगेन शास्त्री। अकरम ने कितने रन्स दिए थे? 32 रन्स दिए थे और 3 विकेट्स ली थी, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली 11 रन्स के पीछे, यानी कि 11 रन्स देने के बाद वो 1 विकेट लेता है। नंबर 2 आजाद। आजाद का है 31 रन्स 3 विकेट्स, तो ये कितना आ जाएगा? 31 अपॉन 3, ये भी 10 पॉइंट समथिंग है, ऊपर भी मेरे पास 10 पॉइंट समथिंग है। नेक्स्ट है शास्त्री 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये कितना आ गया? 4 आ गया, ऊपर वाली दोनों वैल्यू से स्मॉलर आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया बिनी 32 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये?
16 आ जाएगा। तो सबसे लीस्ट जो है शास्त्री है, अगर सबसे हाईएस्ट की बात करते हैं तो बिन्नी आ जाता। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु कंसीडर्ड लीस्ट रन्स पर ओवर। अब पर ओवर की बात हो रही है, पहले पर बॉल था, पर रन था, अब पर ओवर। सबसे पहले रजाक ने टोटल 12 ओवर्स में कितने रन्स दिए? रन्स की बात हो रही है तो कितने रन्स दिए? 24 इन 12 आवर्स। पर ओवर कितने रन्स होंगे? 24/12 यानी कि 2 रन्स पर ओवर। नेक्स्ट है मनिंदर 21 रन्स इन 11 ओवर। 21/11 कितना हो जाएगा ये? 1.9 आ जाएगा। देन शास्त्री 7 ओवर्स में 12 रन, ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया? 1.7। नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज कहता है कि इनके अलावा कोई और भी हो सकता है, तो बाकियों को भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नन ऑफ दीज है तो मुझे बाकियों के भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो, अभी तक लीस्ट हमारे पास 1.7 है, 1.7 से स्मॉलर होगा तो हम देख लेंगे। सबसे पहले अक्रम की बात करते हैं, 32/10, 3 पॉइंट नॉट स्मॉलर। रजाक हो गया। क्लेन की बात करते हैं 24/11, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 8/1 8 है, ये मेरे पास 49/11। 11/4 का 44, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 26/10 कर लेते हैं तो भी 2.6 आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मनिंदर हो गया। अमरनाथ की बात कर लेते हैं, ये 2.3 आ जाएगा, 23/10। अजहर का 7/3, ये भी 2 पॉइंट समथिंग है। और आजाद का 31/12, ये भी 2 पॉइंट समथिंग है। तो सबसे लीस्ट इज शास्त्री, सी ऑप्शन इज द आंसर। शास्त्री है, ठीक है, इसीलिए उसको कोच बना रखा है। अभी नहीं है, निकाल दिया फिर उसको है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी रन्स डिड इंडिया स्कोर इन द मैच? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। पढ़ो डायरेक्शंस। How many runs did India score in the match? Can't be determined. Why? एक्स्ट्रा रन के बारे में मालूम ही नहीं है। वहां पे मुझे क्वेश्चन में दिया था कि इंडिया ने कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कितने एक्स्ट्रा रन दिए हमें मालूम ही नहीं है। इन सब का टोटल जो है वो इंडिया ने स्कोर किया है। इनका टोटल कितना आ गया था? कितना आ गया? 163। 6 9 15 8 23 4 27 163 एग्जैक्ट, नॉट अप्रोक्सीमेट। इंडिया ने 163 प्लस एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा कितने हैं वो हमें नहीं मालूम, तो 163 प्लस एक्स्ट्रा ये इंडिया का स्कोर था। बोला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द मैच वाज वॉन बाय इंडिया बाय 43 रन्स, हाउ मेनी मोर एक्स्ट्रा रन डिड पाकिस्तान गेव देन इंडिया? इंडिया के तो 0 ही है। कितना आ गया? ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल कितना हो गया? 126 आ गया। अब इंडिया ने कितना स्कोर किया था? 163 प्लस एक्स्ट्रा माइनस पाकिस्तान ने कितना स्कोर किया है? 126 इज इक्वल टू इंडिया कितने से विन कर गया? 43। ई की वैल्यू निकाल लो, दैट इज योर आंसर।
ठीक है बच्चे, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि पाकिस्तान ने 6 एक्स्ट्रा रन्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट direction for question 11 to 15, answer the question based on the following information। नीचे रीड कर लेते हैं। नोट WTDC मीन्स वर्ल्ड टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। State government can control the hotels only which lie in its territory. A is the best grade and D is the worst grade। यहाँ पे होटल्स के नेम दे रखे हैं, सीरियल नंबर होटल्स के नेम हैं और उसके बाद उनकी क्लास गिवन बाय WTDC, A क्लास, B क्लास, A क्लास, C क्लास एंड सो ऑन। आगे दे रखा है उनका एड्रेस दे रखा है और उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर पर ईयर दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला होटल है ताज रेजिडेंसी, इसकी ग्रेडिंग है A ग्रेड और ये कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो इसे कौन कंट्रोल करेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें 15334 नंबर ऑफ कस्टमर पर ईयर है। ठीक है, ये डाटा में गिवन था, फिर से देख लो कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल द होटल्स ओनली विच लाई इन इट्स टेरिटरीज। A is the best grade and D is the worst grade। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डाटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड टू ऐड प्लस इन देयर क्लास, यानी कि A will become A plus and so on। ठीक है, लेकिन कब होगा, इफ नंबर ऑफ कस्टमर पर ईयर एक्सीड 13,450 then the number of such A class hotels that will be changed to A plus। ऐसे कितने A class hotels हैं जो A plus में कन्वर्ट हो गए, कितने हो गए, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ढूंढते हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहला होटल और कस्टमर कितने हैं, ये तो एक तो ये A plus में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये महाराष्ट्र में A क्लास है लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर 13,450 है, नॉट मोर देन 13,450, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, एक्सीड, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, और राजस्थान, AP, महाराष्ट्र, एक ये मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं 15,300, तो ये भी A प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान, महाराष्ट्र, ये C क्लास है, महाराष्ट्र ये भी C क्लास है और महाराष्ट्र ये B क्लास है और बस 2 ही है। ठीक है, तो ये उलझना नहीं है क्योंकि अब ऑप्शन में वो 3 भी दे रहा होगा, हाँ दे रहा है, देखो है ना, तो उसने एक्सीड की बात की है तो नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसने जान के वैल्यू भी 13,450 लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी होटल्स विद मोर देन 11,500 कस्टमर पर ईयर हैव ग्रेड बेटर देन C। ग्रेड बेटर देन C, अब बेटर देन C D होगा कि A और B होंगे, A एंड B होंगे। ठीक है, अब मतलब उलझ जाना 11,500 में 7 8 है। चलो ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो C क्लास तो वैसे ही डिलीट कर दो, C क्लास तो आएगा ही नहीं कहीं पे, ये तो मुझे ऐड ही नहीं करने, D भी नहीं ऐड करना। ठीक है, यही करना। अब चेक करते हैं किसमें नंबर ऑफ कस्टमर जो है कितने चाहिए थे मुझे, 11,500 से ज्यादा चाहिए। ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अच्छा, ये C कट ही नहीं किया था, सॉरी। C नेक्स्ट है मेरे पास, ये नहीं आएगा और A क्लास एक ये आ जाएगा, B क्लास ये आ जाएगा और C क्लास नहीं आएगा, A क्लास ये आ जाएगा। नेक्स्ट B 11,500 है और ये आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, C ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। ड्यू टू ए बूस्ट इन टूरिज्म, ग्रेड A होटल अट्रैक्ट 1,500 कस्टमर पर ईयर मोर
then the given number. Grade B hotel attract 1000, grade C 750 and grade D hotel attracts 500 customer per year more than the given number. From the hotels with name starting with the letter M या R, which hotel has the highest customer per year? Mandar International, Madhubani Deluxe, Radisson, Royal Palace. बी ऑप्शन. बाकी तो मुझे एम और आर वाले चेक करने थे. एक आर वाला ये है, एक ये है, दिस होटल और दिस होटल. वैसे भी मैं नीचे से ही देख सकता था, सिर्फ यही होटल डालो क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है. तो उसमें एक तो मेरे पास मंदार इंटरनेशनल आ गया, मधुबनी डीलक्स आ गया, और कौन सा था, रेडिसन था, और रॉयल पैलेस ये था. ये 4 होटल चेक करते हैं. तो सबसे पहले ये मेरे पास सी क्लास है. सी क्लास में कितना एडिशन है? सी क्लास में 750, ये 750 और ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात देखते हैं, मंदार इंटरनेशनल ए क्लास है, इसमें कितने और अट्रैक्ट हो जाएंगे? 1500. और अगर आप इन्हीं का कंपैरिजन कर लो, 1500 में अगर मैं 15,300 में 1500 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 16,800. वो तो इस वैल्यू से वैसे ही लेस है, अभी तो इसमें 750 भी ऐड करना है. थर्ड कौन सा था मेरे पास? रॉयल पैलेस. ये डी क्लास है, 750 कितने इसमें? 500. ये वैल्यू भी 14,000 तक की जाएगी. और नेक्स्ट है मेरे पास रेडिसन, ये ए क्लास है, 1500 इसमें भी ऐड करेंगे तो भी ये 17,995 से स्मॉलर है. तो सबसे मैक्सिमम 17,995 प्लस 750. बी ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. If grades are reversed, that is A and D will interchange. A जो है वो D बन गया, D जो है वो A बन गया. Change their grade and B and C will, और B और C ने अपने ग्रेड चेंज कर लिए. Then answer to question number 13 begins. जो पिछला क्वेश्चन था, अब क्या आंसर हो जाएगा? सेम ही रहेगा. क्यों? रेडिसन, रॉयल पैलेस, मंदार इंटरनेशनल और कौन सा? मधुबनी डीलक्स. ठीक है. ये सी था, अब ये क्या बन गया? बी बन गया. तो इसमें अब टोटल कितना हो जाएगा? 750. इसमें और ज्यादा ऐड हो जाएगा, 1000 है. सॉरी, 750 तो सी का था. ठीक है. ये 1000, तो ये मैक्सिमम यही रहेगा. ठीक है. तो मधुबनी डीलक्स, बी ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है. बाकी सभी वैल्यूज तो 17,000 के नियरेस्ट भी नहीं है, अगर 1500 मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दें तो भी. नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 15. How many hotels which are not there in Maharashtra has more than 12,600 customer per year? कितना आ गया? 6. बी ऑप्शन इज द आंसर. कौन कौन से होटल है? 12,600. महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लेना मुझको, ये भी कट हो गया. और ये महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में है, एक तो ये टिक हो गया. ये एपी में है, एक ये टिक हो गया. ये महाराष्ट्र वैसे नहीं लेना, ये वैसे ही लेस है. और ये महाराष्ट्र नहीं लेना, ये भी कम है हमारे पास. ये केरला में है, एक ये आ जाएगा. और ये विशाखापट्टनम में है, एक ये आ जाएगा. ये वैसे ही कम है हमारे पास. नहीं, ये महाराष्ट्र में, सॉरी, ये महाराष्ट्र में, केरला में 10,000, एक कर्नाटका, एक ये आ जाएगा, एक दिल्ली. तो टोटल कितने होटल्स हो गए? 6 होटल्स हो गए. बी ऑप्शन इज द आंसर. बी ऑप्शन हमारा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Direction for question 16 to 19. These questions are based on the table given below. The percentage growth in the volume of the sale of 5 brands of motorbikes across the year mentioned at the projected increase for the period 2010 to 15. ठीक है.
10 to 15 में हमें प्रोजेक्टेड इंक्रीज दे रखी है, ठीक है, परसेंटेज है। 95 to 2000 तक 15% इंक्रीज है, 2000 से 2005 तक 20%, देन 25% और नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल ऑफ विच मोटर बाइक हैव इंक्रीज्ड बाय द हाईएस्ट परसेंटेज फ्रॉम 2000 टू 2010। बोलना नहीं है, ए बी सी डी आंसर दो मुझे, ए बी सी डी। बाकी भी कैलकुलेट करो बच्चे जल्दी, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन दिखाती है दी एक्स्ट्रा, यहाँ पे वैल्यू 100 ले लेते हैं, 20% की इंक्रीज यानी कि 1.2, 10% की इंक्रीज 1.1, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास 132 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 32% इंक्रीज हो गया। एक वैल्यू और भी है, 10 तक जाना है ना मुझको, 1.3 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.3 से और मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये? कितना हो गया? तो कितना? ओहो, मैं 1995 से ले गया, फ्रॉम 2000 टू, सॉरी बच्चे 2000 से चलना था, तो 2000 है, ये कट हो जाएगा मेरे पास, 2010 तक जाना है, ये भी कट हो जाएगा, सिर्फ मुझे यहीं पे ही चेक करना है। तो मैं वैल्यू यहाँ पे 100 ऐड कर लेता हूँ, ये मेरे पास 1.1 है, ये 1.3 है, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 143। ध्यान देना, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना होता है? अगर मैं कहता हूं मुझे 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दिस साइड 7 दिस साइड, मिडिल में 7 + 2 9 आ जाएगा, 792 हो जाएगा। अगर मुझे 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दिस साइड 2 + 3 5, 3 एट द एंड, 253 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड नंबर है मेरे पास कावासाकी, ये 100 है, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 132 हो गया। थर्ड सुजुकी हायाबुसा 1.2, 1.25, तो 1.25 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.25 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 60 0 6 12 12 144 + 6 150 आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास एप्रिला 10 × 10, ये मेरे पास 121 आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट 150 है, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी को? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If Ducati D-Extra has registered a sale of 42900 in 2010, then what is the difference in the projected sale of 15 and the sale in 2000? कितना आ गया? कितना डिफरेंस आ गया? टू 2010 में मेरे पास D-Extra कितनी सेल दे रखी है मुझको? 42,900, ये है। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोजेक्टेड सेल? तो यहां से मुझे आगे जाना है, 42,900 में 40% की इंक्रीज है, 1.4 हो गया। उसके बाद मुझको दूसरा डिफरेंस किसके साथ कैलकुलेट करना था? 2000 के साथ, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 1.3 1.1 यानी कि 42,900 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 1.1, ये है, ये सॉल्व करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? सिक्स 0060, ये कितना था? 13,
11 3 का 33, 11 9 का 00 का 13 3 का, तो ये कितना आ गया? बोला ठीक है, क्या आंसर है? बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, क्यों उलझ रहे हो? बताया तो था मैंने तुम्हें जब परसेंटेज करवाई थी कि अगर ये वैल्यू दे रखी है पॉपुलेशन के केस में आगे जाना है, 40% का इंक्रीज है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास ये वैल्यू है, मुझे 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे इंक्रीज 1.1 है, यहाँ इंक्रीज 1.3 है। अगली वैल्यू से पिछली वैल्यूज पे जाना है, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने 1.3 और 1.1 से डिवाइड किया, 30,000 आ गया, माइनस किया 30,060 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, the sale of Kawasaki TF910 in 2010 were 2,64,000 and the projected sale of Aprilia ASX100 for 2015 are 544,500. What is the ratio in the sale of Kawasaki to that of Aprilia in 2000? Same question जो भी करवाया, वहां डिफरेंस निकालना है, यहाँ रेशियो निकालनी है। क्या आंसर है? चलो चेक करते हैं। द सेल ऑफ कावासाकी इन 2010 was 2,64,000 एंड द प्रोजेक्टेड सेल, चलो यहाँ पे मेरे पास 2,10,000 है कावासाकी की, और जो हमारे पास एप्रिला है इसकी कॉस्ट, इसकी सेल कितनी थी 2015 में? 5,44,500। मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है? मुझे 2000 ये वाली वैल्यूज निकालनी है। तो 2,64,000 ये 10 की लिखा है, 64 है। 2,64,000 मुझे बैक चलना है, 1.2 1.1 दोनों से डिवाइड कर लूं, 1.2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो निकालनी थी, 5,44,500 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1.5 1.1 एंड 1.1, 1.5 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो एक 1.1 से तो 1.1 वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 12 2 का 24, 12 2 का 24, 2 2 0 0 0 0, ये आ गया डिवाइडेड बाय। इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 11 पे कट कर लेते हैं, 11 4 का 44, 104, 11 9 का 5 आ गया, 11 5 का 0 0, 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 3 का 45, 15 3 का 45, 0 0, और नीचे इन दोनों के डेसिमल्स जो है, ये एक 0 ये एक 0 ये आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो? 11 2 का 22, 11 3 का 33, 2:3, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बाय व्हाट परसेंट आर द प्रोजेक्टेड सेल फॉर 2015 मोर देन द सेल इन 2005 फॉर होंडा MAG EV? कितनी आ गई? 56%। और किसी की करो बच्चे, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे। 2005 ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे अगर वैल्यू 100 है, 1.2 एंड 1.3 मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 13 कितना होता है? तो कितना इंक्रीज है? 56%। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर 20 to 22, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो। पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेलवे, रोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड लाइट हाउस,
shipping, inland water transport, civil aviation, other surface transport. 7th plan 85 to 90 and 8th plan 1992 to 1997. बोलो ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 20. If the percentage growth of investment in shipping from 8th plan to 9th plan were to be same as that from 7th plan to 8th plan, what would be the investment in shipping in 9th plan? ये क्या है और ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम्स था? 5 टाइम्स है. इसकी जो भी परसेंटेज बनेगी अगली परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए. फाइव 6 का 30, 0 3 5 3 का 15 प्लस 3 18, यानी कि 18,000 के नियर अबाउट होगा. 6,000 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता. बच्चे एक ही ऑप्शन है, क्या कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन 21. What percent of total public sector investment in transport sector went into road in plan 7? Sorry. What percentage कैलकुलेट करनी है, ठीक है? 16 plus 6 22 plus 1 23, 23 plus 2 25 और 25 plus 1 26, 26 और 1 27, 27 और 2 29 और थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते 30,000. आइदर 29,000 आइदर 30,000. अब एग्जैक्ट आप निकाल लेना. ये वैल्यू कितनी थी? 6,000. 6 अपॉन 30, 6,000 अपॉन 30,000 कितना हो गया? 1/5 कितना परसेंट होता है? 21. 21%. 34 और 7 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा. अगर तो आपको डाउट है 28 और 21 में तो और एग्जैक्ट कर लो, ठीक है? कितना आया था मेरे पास? ये 6,335 और आई थिंक ये 30,000 से कम है थोड़ा सा, ठीक है? अगर इसका 10% की बात करते हैं कितना हो जाता है? 29 2950 अप्रोक्सीमेट 3,000. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ जाए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ये 20% हो गया और ये हमारे पास 59 हो गया, 5900. ठीक है, डिफरेंस देखते हैं. मेरे पास 400 का डिफरेंस आ गया और इसका 1% करते हैं तो 1% कितना हो जाएगा? 300. इसका 1% में 2 डिजिट कम कट जाएंगे, 300 हो गया. 300 और 400 में इतना डिफरेंस नहीं है कि वो 2% बन जाए, क्योंकि 2% 600 हो जाएगा. 20% प्लस 1% 21%. तो 21% से ज्यादा है, 22% से कम है. ए ऑप्शन 21.5%. ये सारे ट्रांसपोर्ट की वो दे रखे हैं बाइफर्केशन. जो ट्रांसपोर्ट का बजट है उसी की ही बाइफर्केशन. पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हाँ, कहाँ पे? यहां पे ओनली रोड क्यों किया है? रोड्स में कितना परसेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इफ द इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे आर एक्सक्लूडेड, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिटवीन द प्लान 7 एंड प्लान 8? कितना परसेंट हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया है?
प्लान 7 से प्लान 8 में। हाँ जी, कितना आया? मुझे क्या एक्सक्लूड करना था? रेलवेज। तो रेलवेज यानी कि ये एक्सक्लूड कर दो। तो इसका टोटल कितना निकाला था हमने? 29,500 में से 16,500 माइनस कर दो, कितना रह गया? कितना रह गया? 12,500, वो 29,500 था। अच्छा, फिर तो 13,000 हो गया पूरा ही, फिर 13,000 कर लेते हैं। 1300। और इसका टोटल कितना आ गया? इन सब का टोटल करना है, ठीक है। 13, 4, 17, 29 समथिंग। अब वो समथिंग कितना लें? 500 ले लें। चलो, कितना हो गया ये? 16,500, ठीक है। परसेंटेज 16,500 डिवाइड 16,500, हाँ ठीक है, 165 डिवाइडेड बाय 130 कितना परसेंट होता है? 1 + 35 अपॉन 135। 1 का मतलब 100% समथिंग। ऑप्शन चेक करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, दो ऑप्शंस तो कट गई, आइदर सी और डी। अब 35 और 135, 10% इज 13.5, और 13.5 को अगर मैं 3 से करता हूं तो ये 39 पॉइंट बड़ा हो जाएगा। 30% यानी कि 130% से स्मॉलर आना चाहिए। 130% से स्मॉलर 124%, ठीक है। हाँ जी, if the investment in railway are excluded, what is the percentage growth? अब परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकलती है? कितना ग्रो कर रहा है? अगर एक वैल्यू मेरे पास 120 है, एक 150 है, तो कितना ग्रो किया ये? 150 अपॉन 120 होगा, दो जो इनका डिफरेंस होगा, यानी ग्रो मतलब इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ है? तो इंक्रीज के लिए माइनस अपॉन प्रीवियस ईयर 120 करेंगे, तो दोनों को माइनस किया, इंक्रीज जो था वो 16,500 का था, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 23 to 50। अब यहां पे हमारे पास दो डाटा टेबल्स हैं, दोनों डाटा टेबल्स को कंपेयर करना है, दोनों को समझना है गिवन क्या है मुझे। तो सबसे पहले डायरेक्शन अच्छी तरह रीड करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो सेक्शन वाइज, ठीक है। पहले खुद पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा तो तुम समझ जाओगे। पढ़ो, खुद पढ़ो, देखो क्या समझ आ रहा है। मुझे ऊपर वाले टेबल में क्या दे रखा है? गिवन बिलो सेक्शन वाइज कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। सेक्शन वाइज इंडियाज एक्सपोर्ट इन परसेंटेज, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। 1998 99 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड में हमने 17.9% एक्सपोर्ट किए थे। ओर्स एंड मिनरल्स 5.2, पेट्रोलियम 2.3, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 73.6 एंड अदर प्रोडक्ट्स 1%, और इनका टोटल आई थिंक 100% होना चाहिए, ठीक है। सेम 99, 2000, 2000, 2001, 1, 2 एंड 2, 3 सभी का टोटल 100 होगा। आगे क्या कहा है? यहां पे मेरे पास था सेक्शन वाइज, अब है प्रोडक्ट वाइज कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग गुड सेक्टर, ये इसकी बाइफर्केशन दे रखी है। इस 73% की ये बाइफर्केशन है, ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां पे 100 यूनिट्स ही एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने 73.6 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए होंगे, परसेंट नहीं,
73.6 क्योंकि मैंने 100 ही लेट कर लिए। तो इस 73.6 का 7.1% लेदर प्रोडक्ट्स है, 8.8% केमिकल्स है, 12.5 इंजीनियरिंग गुड्स है, 14% टेक्सटाइल्स है, रेडीमेड गारमेंट्स 12.3%, जेम्स एंड ज्वेलरी 15.3 एंड अदर्स 30। इनका टोटल 100%। ये नीचे दे रखे हैं, ना भी दिए होते तो भी परसेंटेज का टोटल 100 है। समझ आया अब टेबल? ठीक है, क्वेश्चंस देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। In 2000 to 2001, this one, if $2 to $4.10 million worth of leather goods, कहां पे है leather goods? ये 5% was exported from India, then the total export of India were in $1 million. total export. अब ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या है कि 5% की बाइफर्केशन दे दी, वैल्यू दे दी, 5% की दे दी। मुझे क्या निकालना है? मुझे टोटल एक्सपोर्ट निकालने हैं। तो अब ये जो 5% है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइडेड बाय 5%। अगर 5% इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 224.10 डिवाइडेड बाय 5%। ये मेरे पास आ गया। अब ये वैल्यू क्या ही है? ये वैल्यू तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आए हैं। तो 2001 में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कितने परसेंट थे? यानी कि ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ओनली 74.7%। तो व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट? अगेन इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर लेंगे? 74.7% से। सॉल्व करो, दैट इज योर आंसर। वो मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, या फिर सर ऐसे नहीं समझ आया? ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट इज एक्स। मेरा टोटल एक्सपोर्ट एक्स है। एक्स में से कितना परसेंट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है 2001 में? 74.7% है। इसका 74.7% कर लेते हैं। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ गया, यानी कि बॉटम वाले टेबल की वैल्यू आ गई। अब बॉटम वाले टेबल में हमारे पास जो लेदर प्रोडक्ट्स था सेम ईयर में, वो 5% है, यानी कि इस वैल्यू का 5% ये लेदर प्रोडक्ट्स आ गए। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये मुझे गिवन थी क्वेश्चन में, 224.10 मिलियन डॉलर। इसको सॉल्व करेंगे और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे? तो क्वेश्चन को देख के नहीं डर जाना कि 2 टेबल दे दिए, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, कभी ऐसा किया ही नहीं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। तो क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन। यही है सबका? कर लोगे सॉल्व इसको? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑप्शन ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन भी खुद समझोगे। If the export of gems and jewelry in 99-2000, gems and jewelry, ये है मेरे पास। और कौन से ईयर में की बात हो रही है? 99-2000 की बात हो रही है। दैट इज 16.6%, 1/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहा था इसने? अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 300। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स? 300 डिवाइडेड बाय 1/6, तो कितना हो गया? ये 1800 हो गए। यानी कि मेरे पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे ये 1800 हो गए। ये 1800, दिस वन। बट ये 77.6% कितना होता है?
बोलो, परसेंटेजेस नहीं आते बच्चे आपको? तो 1800 टोटल एक्सपोर्ट कितना हो गया मेरे पास? 77.6%। ये आगे टोटल एक्सपोर्ट कौन से ईयर का? 99 2000 का। लास्ट ईयर, लास्ट लाइन में दे रखा है कि हमारे पास 2002-3 में 99 2000 के कंपैरेटिवली जो एक्सपोर्ट है वो 150% इंक्रीज कर गया। तो 150% कितना होता है? 2.5? यस नो? 100% इंक्रीज कितना होता है? डबल। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था ना 1+%, परसेंटेज की क्लास लगाई हो तो 1+%, 1+%, 150%, 1.5, तो मल्टीप्लस किया 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150% आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स? तो ओर्स एंड मिनरल्स कहाँ पे है मेरे पास? अब मेरे पास 2002-3 का इसका टोटल एक्सपोर्ट आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और इसमें से ओर्स एंड मिनरल्स कितना है मेरे पास? 3.6%। तो इसको हम 3.6% अपॉन 100 सॉल्व कर लो बच्चे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस परसेंट को उठाऊंगा ऊपर 100 आ जाएगा, तो परसेंट और 100 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, करो सॉल्व, कितना हो गया? करो जल्दी कैलकुलेशन। अब तो बताओ मुझे क्या आंसर है। कितना आ गया? 210, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट है तो बताओ क्वेश्चन में। कोई डाउट नहीं है? हाँ, देख बच्चे, स्किप ये है कि स्किप करना चाहता है कर ले, बट ऐसा अगर आता है तेरे को या फिर बाकी क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं फिर ये कर लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही है। हाँ कैलकुलेशन है, कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, रिपीट करूं, मेरे पास इसकी वैल्यू दे रखी थी 300। ठीक है, तो 16.67% इज इक्वल टू 300। व्हाट इज 100%? तो डिवाइड कर दूंगा दोनों को, यूनिटरी मेथड। 16.6% इज इक्वल टू 300, 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय दिस है। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। किस दी? हाँ हाँ, अगर मेरे पास यहां पे वैल्यू x थी तो x, अगर मेरे पास वैल्यू जो थी वो x थी तो x का 77.6, ये इतना परसेंट, ये मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ गए। अब इस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का 16.6% जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगा? जेम्स एंड ज्वेलरी आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू 300 के इक्वल दे रखी है। ये तो x से चलना है तो x से चल लो, डायरेक्ट करना है तो मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा था कि अगर मुझे 16.67% इतना दे रखा तो 100% कितना होगा? ऑब्वियसली उधर जाके डिवाइड ही होगा। फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थे वो मेरे पास वैल्यू आ गई। टोटल एक्सपोर्ट कितना होगा? टोटल एक्सपोर्ट x है कि 77.6 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टोटल एक्सपोर्ट आ गया। कौन से ईयर का टोटल एक्सपोर्ट आया मेरे पास? ये 99
2000 का, ये इस ईयर का टोटल एक्सपोर्ट आ गया। अब इस ईयर का टोटल एक्सपोर्ट कैसे निकालना है, यह आखिरी लाइन में दे रखा है कि टोटल एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 150% फ्रॉम 99 2000 टू 2023। तो यहां से ये एक्सपोर्ट की वैल्यू आ गई, यहां से यहां निकालना है, 150% निकाल के ऐड कर लो। तो 150% ऐड करके 150% कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो उससे अच्छा मैंने आपको बोल दिया डायरेक्ट 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो। कहां किया था ये, डायरेक्ट 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो। कोई भी चीज जितना परसेंट इंक्रीज होती है उसमें 1 ऐड होता है। 300% इंक्रीज हो रही है यानी कि 4 टाइम्स हो रही है, 400% इंक्रीज हो रही है यानी कि 5 टाइम्स हो रही है, 100% इंक्रीज हो रही है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 250% इंक्रीज हो रही है यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, 170% इंक्रीज हो रही है तो 2.7 से मल्टीप्लाई होगा। जितना परसेंट इंक्रीज होता है उसमें 1 ऐड होता है, ठीक है। तो मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास ये एक्सपोर्ट आ गया 2023 का। अब कैलकुलेट क्या करना था, कहता हमें कैलकुलेट करना था ओर्स एंड मिनरल्स की वैल्यू 2023 की। तो ये 2023 का एक्सपोर्ट था, इसमें से ओर्स एंड मिनरल्स 3.6 थे, यानी कि इस वैल्यू का 3.6% ऐड करना है। बोलो ठीक है, मैं तुम्हें लेवल पे करवा रहा हूं डीआई बच्चे। अगर पीसीएस को देखोगे तो पता लग जाएगा कि वहां पे पेपर हाई लेवल का था, हाई लेवल की है। अगर किस्मत अच्छी है तो इससे इजी आ जाएंगे, नहीं तो ये लेवल तो करो ही करो आप। और इजी आना कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है। अगर इजी पेपर आता है तो मतलब कि ये रखो कि 2-3 हजार बच्चा पास हो जाएगा, फिर उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे, उसमें से कैसे सिलेक्ट करेंगी, उसमें से कैसे सिलेक्ट करेंगे। फिर ये नहीं है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स जो हैं वो लेके आपको सिलेक्ट करने लग जाएगी ये पीपीएससी। ध्यान रखना, पीपीएससी जो है वो आपको पेपर में ही उन्होंने आपको हराना है, वहां पे वो इजी नहीं देंगे, आपको उलझाएंगे, टफ देंगे, घुमाएंगे, पजल क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। जैसे कि पजल दे रखा है, मतलब कुछ पूछा हो रहा है, ऑप्शंस बहुत वो होंगी, ट्रिकी होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चे।